Welcome to everyone. I hope you all guys are doing good. Today I'm going to start exercise 23A, the fundamental of geometry. Okay, so uh, this chapter is very important because this is the basics of geometry. So it is very important for you to understand this chapter very well because these are the basic concepts of geometry, and when you go in the higher classes, then these basic knowledge of geometry is going to help you a lot. Okay, so let us understand this chapter from the basic of the means the basic very little thing we'll understand in this chapter, and trust me, it is very interesting, as well as very you can say you can achieve good marks from this portion of geometry in your half yearly examination. Okay, so let me start uh, this class. Let us start with question number 1. Whatever you want to ask, you can write your question in the comment section. I can read your comments, okay, and you can give the answers also in the comment section. So let us start today's video. Question number 1 says, state true or false. If false, correct these statements. A dot has width but no length. Okay, so let me tell you about the dot. What is a dot? I will tell you true and false, as well as I will keep explaining the things which are coming in the question. Okay, so do not just think about true false, but also focus on the explanation of the things which I am going to explain here about the different terms of the geometry. Okay, so I'm going to now explain what is a dot. So dot is just a point. We can say it is a point, or in Hindi we call it a bindu, okay, or a point, or in Urdu we call it nukta, okay. So what is a point? What is a dot? Dot has no length, it has no width, it has no height. Okay, keep these three things in mind. A dot has no length, no width, no height. Okay, so this statement is saying a dot has width but no length. So it is false. Why? Because dot neither has length nor width. So this is a false statement, and you have to correct the statement also. So you will write a dot has neither length nor width. Okay, so let us now do the second statement. A ray has an infinite length only on one of its side. Okay, only on one side of it. So students, now let us discuss about the ray. What is a ray? Okay, so for example, this is a line. Okay, this is a line, or let's say I'm making it here. Yes. So this, sorry. Okay, so this is a ray, and the name of the 2 points are A. This is point A, and this is point B. Okay, in ray we have arrow only one side. Okay, on the other hand, let me tell you about the line also. So this is a line, this is a line, and in line we are having arrow both the side. This is point A and this is point B. So we in this is a line, okay, and this is a ray. So what is the difference between line and ray? Understand it very carefully.
a ray has one arrow, a ray has arrow sign one side, on the other hand a line has arrow sign both the side. What does this arrow sign represent? For example, if I have made this line and arrow, so what is this arrow represents? This arrow represents that line, the length of the line is not definite, and it is not just ended here. I mean to say that the length of this line is going on infinitely. So we cannot draw a line infinitely. That is why we draw this arrow. Okay. Yes. In other words, if I say ये arrow क्या denote कर रही है? So ये arrow ये denote कर रही है कि ये line यहाँ पे अभी end नहीं हुई है. ये लाइन एंड नहीं हुई है, ये आगे तक जा रही है. और कहां तक जा रही है? ये इनफाइनाइट तक चली जा रही है. ये कंप्यूटर की स्क्रीन को भी आगे, कंप्यूटर की स्क्रीन को भी उसके भी आगे जा रही है और इनफाइनाइट तक आगे जा रही है. सो इनफाइनाइट तक तो कोई भी बना नहीं सकता, इनफाइनाइट तक जाकर तो कोई भी लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए हम यहाँ पे एरो बना देते हैं. सो दिस एरो इज डिनोटिंग कि ये लाइन की जो लेंथ है ये इनफाइनाइट तक जा रही है. और यहाँ पर अगर एरो दूसरे साइड पर नहीं बनी है तो इट मींस कि यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो स्टॉप हो गई है. इज इट क्लियर? सो जहां पे स्टॉप हो जाती है उसको कहते हैं एंड पॉइंट. एंड पॉइंट. सो इस एरे में, इस यहां बात करें इस रे में एक एंड पॉइंट यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो ये जो एरो होती है, ये वाली एरो, ये बताती है कि यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है. तो अब आपकी बात समझ में आ गई होगी. आई थिंक नाउ दैट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोनों साइड एरो दिख रही है. लाइन मींस बोथ साइड एरो. इट मींस नो एंड पॉइंट. नो एंड पॉइंट इन लाइन. क्यों? क्योंकि लाइन तो होती ही इनफाइनाइट तक है. ये इस तरफ से भी इनफाइनाइट तक जा रही है और इस तरफ से भी इनफाइनाइट तक जा रही है. इज इट क्लियर? इसलिए दोनों तरफ इसमें एरो बना दी जाती है. ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द रे, तो रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट तक जा रही होती है. तो जिस तरफ एंड पॉइंट होता है वहां पर तो इसकी लेंथ डेफिनेट होती है, वहां से मतलब ये शुरू हो रही है. मींस अगर हम इस रे की बात करें जो ऊपर मैंने ड्रॉ की हुई है, if we talk about this ray, so students ये जो पॉइंट A है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है? कोई बता सकता है कहाँ तक जा रही है? A to B. ये जो रे ए बी मैंने ड्रॉ की है ये कहाँ तक जा रही है? ये इनफाइनाइट तक जा रही है बेटा. इनफाइनाइट तक जा रही है, बी तक नहीं जा रही है. बी तो इसका एक पॉइंट है ये वाला, बट ये जा कहाँ तक रही है? ये इनफाइनाइट तक जा रही है. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? You people are not today writing the comments in the comment section. देखो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डालोगे तभी मुझे समझ में आएगा आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना मुझे तो लगेगा कि आधे बच्चे सो रहे हैं, आधे देख ही नहीं रहे. अगर आप कमेंट करते रहोगे तब मुझे समझ में आएगा कि आप फोकस है, आपका कंसंट्रेशन है यहाँ पर. ठीक है? तो एवरीबडी कीप ऑन कमेंटिंग. और इससे मुझे समझ में भी आता है भाई, मुझे 5 मार्क्स तो वाइवा के देने हैं ना, तो मुझे समझ में आएगा कि भाई कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है. जो नहीं देख रहा है उसको मैं थोड़ी ना दूंगा फिर वाइवा के मार्क्स. कौन रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है. ओके, सो अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन के. रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो इफ दिस इज रे ए बी, तो इसको ऐसे लिखते हैं ए बी और ऊपर रे का साइन बनाते हैं. ऑन दी अदर हैंड अगर हमारे पास एक लाइन है, ये हमारे पास एक लाइन है, and if this point is A and this point is B, तो A, इस लाइन को कैसे लिखेंगे? AB और इसके ऊपर लाइन का साइन बनाएंगे. तो लाइन का साइन ये होता है, रे का साइन ये होता है. ठीक है? और एक तीसरी भी चीज होती है, there is one more thing. एक चीज तो आपकी हो गई रे,
ठीक है, क्लियर। सेकेंड हो गई आपकी लाइन, और थर्ड होती है एक चीज लाइन सेगमेंट। तो कभी भी आपको पूरी लाइफ में कभी भी इन थ्री थिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना है। रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द लाइन सेगमेंट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन लाइन सेगमेंट से ही रिलेटेड है। तो एक बार आप अच्छी तरीके से समझ लोगे ना तीनों चीजों को, देन आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ट्रू फॉल्स में हो या कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स हो या कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, आप फट से चुटकी बजाकर उसको कर लोगे। ओके, सो लेट अस नाउ डिस्कस व्हाट इज लाइन सेगमेंट। ओके, सो व्हाट इज लाइन सेगमेंट। सो अभी क्या है, लाइन सेगमेंट को देखो ऐसे डिनोट करते हैं हम। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, सॉरी, दिस इज अ लाइन सेगमेंट। अब आप देख रहे हो देयर इज नो एरो, तो लाइन सेगमेंट में एरो नहीं होती है। ओके, इन लाइन सेगमेंट a line which has both side a dot, सारा ये तो कहना सही नहीं होगा, बट इफ यू कैन से दैट इट हैज टू एंड पॉइंट्स। ओके, लाइन में कहीं भी एरो नहीं है, इट मींस कि यहाँ पर भी हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा, इसके दोनों तरफ हमें एंड पॉइंट मिलेगा, इधर भी एक एंड पॉइंट है, इधर भी एक एंड पॉइंट है। सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी, और ऐसे डैश या लाइन बना देंगे उसके ऊपर। ओके, सो इसकी जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है या डेफिनेट होती है, हम कहेंगे डेफिनेट। इसकी जो लेंथ है दैट इज डेफिनेट। ओके, लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। रे की लेंथ भी सॉरी ये इनडेफिनेट होती है, रे की लेंथ इनडेफिनेट होती है क्योंकि ये आगे कहां तक जा रही है हमें नहीं पता, और लाइन की लेंथ भी इनडेफिनेट होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है। या हम कह सकते हैं कि एक जो लाइन है वो फाइनाइट लेंथ की होती है, बट सॉरी लाइन सेगमेंट जो है वो फाइनाइट लेंथ का होता है, बट जो लाइन होती है वो इनफाइनाइट होती है, और रे जो होती है दैट इज ऑल्सो इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट टाइम वन मोर थिंग, fine. So now let us do the second sentence again. Back to the second sentence, and it is saying that a ray has infinite length only on one side of it. So it is true. It is true because a ray has, I have told you, a ray has infinite length on one side only. Third, a line segment PQ is written as, तो क्या हम लाइन सेगमेंट को इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे जो साइन ऊपर बना हुआ है ये तो लाइन का साइन है, ये लाइन सेगमेंट का नहीं है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। False. Okay, so I was discussing the third. It is saying that line segment PQ is denoted as this, but this is false. PQ अगर कोई line segment है तो हम उसे ऐसे denote करते हैं. Fine. So this statement is also false. Now fourth statement, PQ and this is the sign of line, represent a straight line. So yes, this is true. It is representing a straight line. Okay, so fourth statement is true. Now fifth statement says, it says 3 points are said to be collinear if they lie on the same plane. Okay, read it again. It's saying 3 points are said to be collinear. Now what is collinear? Discuss this. Collinear. So collinear are the points which lies on the same line. For example, if you have this point and this point and this point,
all these 3 points. Okay, so if you want to draw a line passing through these 3 points, so yes, it is possible. We can draw a line passing through these 3 points. So these 3 points are collinear. Okay, this point, and this point, these 3 points are collinear. But if there are, let's say, this point, and this point, now these 3 points are given to you. Now I want to ask you a simple question. Can we draw a single line passing through all these 3 lines? क्या इन 3 पॉइंट्स से होते हुए कोई लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं? इन 3 पॉइंट से जाती हुई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज आप 2 पॉइंट से तो कर सकते हो, बट ये अगर ऐसे करोगे तो ये फिर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी. सो इट मींस दैट दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर. ये जो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर नहीं है. सो आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलिनियर? क्लियर? Collinear means those points which lie on the same line. ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन में हो, या ऐसे पॉइंट्स जिनसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती हो. Is it clear? So this sentence is saying 3 points are said to be collinear. 3 points are said to be collinear if they lie in the same plane. तो अगर 3 पॉइंट सेम प्लेन पे हैं तो क्या वो कोलिनियर होंगे? यस सर. सो अभी यहाँ पे एक और चीज समझ, अभी आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, एक चीज और समझनी होगी. इन दी सेम प्लेन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन दी सेम प्लेन? एट द सेम. सो फॉर एग्जाम्पल, प्लेन इज व्हाट? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन. आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है, कंप्यूटर स्क्रीन है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन. ओके, सो इफ देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन, देखो ये जो मैंने पॉइंट्स ड्रॉ किए थे ये सेम प्लेन पे ही तो थे, एक ही स्क्रीन पे थे ना. कोई ऐसा इनमें से पॉइंट तो नहीं है ना जो स्क्रीन से बाहर हो. सो दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द सेम प्लेन, बट आर दे कोलिनियर? एक ही थिंग्स पे सारी थिंग्स. ये थिंग्स क्या है? डिफाइन द थिंग्स. थिंग्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे एक ही प्लेन पे सारे पॉइंट्स हों, बट दे आर नॉट कोलिनियर. सो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. कि अगर 3 पॉइंट्स सेम प्लेन पे है तो जरूरी नहीं है वो कोलिनियर हो. कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है? कोलिनियर होने के लिए कंडीशन ये है कि दे शुड लाई ऑन द सेम लाइन. शुड लाई या LYA lie on the same line. On the same plane नहीं, लाइन के प्लेस पे अगर आप प्लेन लिख दोगे तो ये फॉल्स हो जाएगा. तो स्टेटमेंट होना चाहिए 3 points are said to be collinear. What will be the right statement, students? What will be the right statement or correct statement? So the correct statement will be 3 points are said to be collinear if they lie in the same plane. को हटा के लाइन कर दो बस. ओके, तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर तभी होंगे जब वो सेम लाइन पे होंगे, ना कि सेम प्लेन पे. इज इट क्लियर? So I hope कि question Yes, number sir. 1 अच्छे से समझ में आया होगा. Now we are going for the question number 2. Write how many lines can be drawn through a given point. So एक given point ये हमारे पास है. Let's say ये point है. अब बताओ इस point से कितनी lines होके हम draw कर सकते हैं, कितनी lines जा सकती हैं इस particular point से? How many lines can you draw going through this particular point? So let's say this is the first line. Yes sir. This is the second line that we can draw. This is the third line. Okay,
This is the fourth line. Again, Infinite. there's one also. So what do you think? How many lines can we draw? 10, 20, 100, 200, Infinite. 1000. How many lines can we draw? Passing through the single point. एक single point से कितनी lines होके जा सकती हैं? What is the answer? Infinite lines. Yes, very good. Bisma, Jatin, Adarsh, Ekansh. Very good. So the right answer is infinite. Infinite lines. Okay. Yes, So sir. we can draw infinite lines passing through a single point. Now what about two given fixed point? For this time we are having this point and this point. Okay. So these are the 2 point, let's say point A and point B. So how many lines can we draw passing through these 2 points? One line. One line. One. So we can draw only one line, only one line give by through the given 2 points. Okay. So only one line. तो अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है. आप कितना भी ट्राई कर लो, कोई दूसरी लाइन आप नहीं बना सकते 2 गिवन पॉइंट से. नाउ 3 कोलिनियर पॉइंट्स. 3 कोलिनियर मींस ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में लाई करते हो. अभी मैंने पीछे बताया आपको 3 कोलिनियर पॉइंट्स. तो हाउ मेनी लाइंस कैन वी ड्रॉ passing through these 3 lines? Only one line. Okay, here also only one line. Now 3 non-collinear points. अब हमारे पास 3 points हैं. This time we are having 3 points, but they are not linear, they are collinear. Okay, so let's say कि एक point यहाँ पर था, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. So अब इनसे कितनी lines हम draw कर सकते हैं? One line. यानी ऐसी lines जो इन तीनों से होके जाए. So we cannot draw even a single line. So the answer is no line. We can draw no line passing through this thing, because अगर हम ऐसे draw करेंगे, let's say ऐसे draw करेंगे तो इससे नहीं होके जाएगी. अगर ऐसे draw करेंगे तो इस वाले point से होके नहीं जाएगी. अगर ऐसे draw करेंगे तो ये वाला point रह जाएगा. तो हम कोई line 3 point से जो non linear हैं, non collinear हैं, उनसे हम कोई भी point draw, कोई भी line draw नहीं कर सकते. Is it clear? Say yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yeah, it will be curved. Okay. Next. Question number 3 on your screen. Question 3 says correct this statement if it is wrong. If it is wrong. Sir, this is not question number 3. It is question number 5. No, sir, it is. Yes, sir. It is not question number 3. It is question number 4. So Yes, sir. Yes, sir. just wait for it. So let us do this Okay, question. sir. A ray can be extended infinitely on either side. It means it is saying a ray can be extended infinitely. For example, this is a ray and the question is saying we can extend it. Extend means Sir, increase. we can extend or expand it infinitely on either side. Either side means on Only one one side. side. So yes, Only one we side. can extend it. Only one. So this is a correct statement.
So we True. don't need to correct it. Okay. A ray has Yes. definite length. A ray has, so False. this is a ray. Does it have definite length? No, it has indefinite. It is indefinite length. So you have to correct the statement. Okay, you will write no, a ray has indefinite length. Now next, a line segment has definite length. True. Yes, this is correct. Because जो line segment होता है, that is a part of the line. For example, this is a line. ये एक line है और आपने क्या किया, इस True. लाइन में से यहां से लेकर के यहां इतने पार्ट को आपने अलग से कट कर लिया और ये आप यहां पे रख दिया कट करके, ठीक है। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, आपने यहां से कट किया ए से बी तक और यहाँ पे बाहर रख दिया इसको। तो अब क्या होगा, ये तो लाइन है लेकिन ये लाइन का सेगमेंट है। सेगमेंट मींस अ पार्ट ऑफ लाइन। सो सेगमेंट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है वो डेफिनेट होती है। So yes, this is true or correct statement. A line segment has definite length. Okay. Now fourth, a line has two endpoints. So this is not correct. Line has No. no endpoint. You will have to write line has no endpoint. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसके दोनों जो एंड होते हैं वहां पर एरो होती है, तो जब जहां भी एरो होगी वो एंड पॉइंट नहीं होगा। नो एंड पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट, अ रे हैज ओनली वन एंड पॉइंट। सो यस, इट इज ट्रू, यहाँ पे रे में एक तरफ एंड पॉइंट होता है, दूसरी तरफ नहीं होता है। सो दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। इफ फॉल्स, गिव द करेक्ट स्टेटमेंट। A line has a countable number of points in it. एक जो लाइन होती है, क्वेश्चन ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझो, ये लाइन है, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, यानी ये लाइन जिन पॉइंट से मिलके बनी है उनको हम काउंट कर सकते हैं। सो लाइन में कितने पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और उन पॉइंट से छोटे छोटे पॉइंट से ये लाइन मिलके बनी है। जैसे स्मॉल क्लासेस में क्या होता था कि पॉइंट गिवन होते थे ऐसे करके और आपको क्या करना होता था, उनपे पेंसिल चलानी होती थी ना, इफ यू रिमेम्बर। तो आप क्या करते थे, उस पे पेंसिल चलाते थे जिससे आपकी राइटिंग सही हो जाए। तो इसी तरीके से जो भी लाइन होती है वो छोटे छोटे पॉइंट से मिलके बनी होती है। फाइन। सो नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स, काउंटेबल और अनकाउंटेबल? So a line has uncountable points. Whether it is line or it is ray or it is line segment, कोई भी हो, line हो, ray हो, line segment हो, सब में uncountable points होते हैं। Okay? Everything Yes. has uncountable points. Countable point सिर्फ और सिर्फ point में ही होता है क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही point होता है। I hope it is clear. Next. Only one line can pass through a given point. एक given point से सिर्फ एक ही लाइन जा सकती है। False. Uncountable lines. Uncountable This is also lines can false. go through it. The intersection of two planes is a straight line. Intersection of two planes. अभी देखो what is intersection? 4 minutes are left. जल्दी से intersection को समझ लेते हैं, बहुत important point है यहाँ पर। What is intersection? देखो, जब कोई line, for example, we are having two lines. Okay, this is one line and this is another line, and they are meeting. They are cutting each other on this given point. Let's say this point is O. So they are meeting at O point. ठीक है, तो ये जो O point है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये लाइंस एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इसको हम बोलते हैं कि इंटरसेक्ट कर रही हैं। सो व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मींस के जब लाइन का इंटरसेक्शन क्या होगा कि व्हेन टू लाइंस मीट विद ईच अदर, यस, व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर, हम मीट भी कह सकते हैं, कट भी कह सकते हैं, ठीक है। सो व्हेन टू लाइंस कट ईच अदर, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। बट यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स की बात हो रही है, इंटरसेक्शन ऑफ
प्लेन्स की बात हो रही है। तो व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन? प्लेन कैसे इंटरसेक्ट करते हैं? देखो, राइट नाउ वी आर हैविंग टू प्लेन्स, लेट्स से अभी हमारे पास वन प्लेन है, यहाँ पर एक प्लेन ये है, एंड वी आर हैविंग अनदर प्लेन हियर. ओके, सो दिस इज अ प्लेन, और यहाँ पर एक हमारे पास और प्लेन है. ये रॉन्ग हो गया, मैं आपको ऐसे बताता हूँ. देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार्डबोर्ड है, फाइन, ये कार्डबोर्ड है आपके पास, और यहाँ पे आपने क्या किया, एक लाइन बनाई कार्डबोर्ड पर, और यहाँ पर इसको कट कर दिया यहाँ से, और एक दूसरा कार्डबोर्ड आपने इसके अंदर इंसेक्ट कराया, जो यहाँ से जा रहा है और दूसरी तरफ से ऐसे निकल रहा है. इसको इमेजिन कर पा रहे हो आप? अगर इमेजिन कर पा रहे हो तो बताओ, वरना और एक्सप्लेन Yes, करेंगे. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. सो टू प्लेन्स एक दूसरे को कट कैसे करेंगे? एक कार्डबोर्ड था, यहाँ से बीच में से कट किया, दूसरे कार्डबोर्ड को उसके अंदर आपने डाल दिया इस तरीके से. तो अब ये दोनों कार्डबोर्ड क्या हैं? एक कार्डबोर्ड एक प्लेन है, दूसरा कार्डबोर्ड दूसरा प्लेन है, एंड दे बोथ आर कटिंग ईच अदर. वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं. तो जब अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की. जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, समझ रहे हो? जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे करेंगी, लेकिन जब टू प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो किस पे करेंगे? एक लाइन पे करेंगे. ये है, दिस इज द मेन पॉइंट विच आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड. When two lines meet each other, Ferris, when two lines meet each other, so they meet on a point. But when two planes meet each other, जब टू प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक पॉइंट पे नहीं करते हैं, वो एक लाइन पे करते हैं. एक लाइन बनती है यहाँ पर. सो इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज ट्रू. ओके, you can imagine it with the example that I have given to you. Okay, Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल यू कैन, अभी यहाँ पे क्या है, आप अपने अगर रूफ को देखो तो रूफ में कई सारे प्लेन्स है. अगर आप एक वॉल को भी देख लो, ये एक वॉल है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वॉल, और यहाँ पर एक ऐसे, यहाँ पे एक दूसरी वॉल है, ठीक है? तो देखो, ये वॉल एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, और ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सो जब टू प्लेन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो लाइन पे करते हैं. एंड द टाइम इज अप, सो आई विल कंटिन्यू दिस एक्सरसाइज टुमारोज क्लास. ओके, अभी यहीं तक आप कीजिए, एंड अभी जहां तक भी आपका